Hello everyone, welcome to the channel Majestic Tarot Astrology. This is going to be the July reading for the signs of Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces sign for the month of July. So let's dive into the readings. So, dear Libras, your first card for the month of July in your personal life is the King of Swords. So, it seems like you're in this energy of wanting to cut out or cut off anybody who you seem, जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा पर्सन है, या ये इंसान मेरी लाइफ में बस फालतू में है, किसी काम का नहीं है, या मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरे किसी काम नहीं आता. तो यू आर जस्ट यू एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर वांटिंग टू कट ऑफ दोज पीपल और places, situations, whatever it could be. So yeah, you're cutting off people, places, situations, and you are also becoming very active, very action oriented in the first month of Mercury retrograde. In the first week of July, in your personal life, you're cutting off people, places, situations. You're taking action towards it. You're not just thinking about it. You're taking action towards it, and you are cutting off people, places, situations जो कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वे डाउन कर रही हैं, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, या प्रोग्रेस नहीं करने दे रही हैं, या वो आपके बेनिफिट में नहीं है, आपके हित में नहीं है. उस तरीके के लोग, situations, places, people, you are cutting them off. Okay, that's the action you're taking. So mid of the month of July, the card that comes up for you is the Devil. तो it seems like शायद आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी है जो कि आपको एक नार्सिसिस्टिक, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर या थॉट पैटर्न देती है. You have that toxicity inside of you, and maybe you're not coming to realize that as of yet, but it is very deep inside of you, and you at times try to manipulate situations as per your benefit in your personal life. That's what I'm picking up from the cards, and you are not coming into this realization in the beginning by, but धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये आपके अंदर एक टॉक्सिक हैबिट है, जहाँ कि आप थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने के लिए, लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए यू यूज़ दोज नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ऑफ योर्स. ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अप, एंड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशंस भी बिल्ड किए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में. You not initially, you're not realizing it, but slowly by mid of the month, exact 15, 16, 17 July ko, you will come to this realization. Okay, by the end of the month the Emperor comes, but it's in reverse. कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके अंदर एक हिडन ईगो है, बट आप उस ईगो को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो. मतलब मे बी आपके आसपास के लोग या आपके अपने लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि आपके अंदर एक ईगोइस्टिक पैटर्न है, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. यू हैव ईगो issues. If this was in upright, then it would have been authority figure. Okay, people respected you a lot, but it's in reverse. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसे ईगो इश्यूज हैं जिनकी वजह से लोग आपसे, आपके अपने लोग दूर जा रहे हैं because of your own egoistic issues, and you need to work on those things. Okay, so behind the scenes what's happening is the bottom of the deck card, High Priestess. तो what's happening is this whole month is divinely orchestrated for you. वन बाय वन ये challenges, ये situations जो आपकी लाइफ में अब आ रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, that is happening because ये चीज़ें आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक बेटर पर्सन बनाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं. तो यू आर गोइंग टू डील विद दीज सिचुएशंस बिकॉज गॉड, यूनिवर्स has sent these situations in your way in order to
make you grow as a person in your personal life. Okay, so that says what is happening. और on the work front, the first card that comes up for you is the Fool. तो आप कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नई जॉब, किसी पर्सन के साथ नई कोलैबोरेशन कुछ स्टार्ट कर रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एंड शायद आप करना चाहते थे कुछ टाइम से, बट कहीं ना कहीं अटक रहा था, तो यू फाइनली डूइंग दैट, and you seem to be happy. You know the risks, you know the pros and cons of the situation, but anyways you're going ahead and uh, doing what you feel like doing in your work situation, and it seems very positive. Okay, then comes the mid of the month. You're flooded with opportunities, you're flooded with a lot of options in your work front. अगर आप जॉब सीख भी कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस आपकी तरफ आएंगे और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, एंड यू आर चूजिंग, यू आर टेकिंग योर good time to choose which option would be the best suited for you, and you are going to take at least a week to decide कि आपको किस तरफ जाना चाहिए. By the end of the month, the Four of Pentacles shows up. So what you're focusing on is having a stable work life. आपका फोकस है बाय द एंड ऑफ द मंथ एक स्टेबल वर्क लाइफ पे, एक बोरिंग लाइफ कह सकते हैं, नॉट नथिंग एक्साइटिंग, नथिंग न्यू. यू डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू समथिंग न्यू या समथिंग एक्साइटिंग. यू वांट टू स्टिक टू द बेसिक्स. जो आप कर रहे हैं आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आप बस उस चीज़ में एक स्टेबिलिटी लाने में लगे हुए हैं. मतलब इट्स नॉट कि आपके लिए कोई टफ चीज़ नहीं है उस चीज़ में, उस अपने वर्क सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाना, बट आप उस चीज़ को बस स्टेबल रख के चलाना चाह रहे हैं. यू डोंट वांट एनी न्यू थिंग्स नाउ. ओके, या इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, but then I see you continuing it. By the end of the month you come into this energy of now I want to continue this for some more time. Okay, bottom of the deck is the Magician card, but it's in reverse. So व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की है, कोई चीज़ आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी, जॉब, जिस तरीके की आपको चाहिए थी, एग्जैक्ट जो प्रिसाइज आपके माइंड में चीज़ें थी वो अभी नहीं हो रही हैं. बट दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज first you're being prepared for its level 1, then you will go to the level 2, then you will go to the level 3. So that is what I see is happening here. जो आप चीज़, एग्जैक्ट चीज़ जो आप चाहते हैं उस चीज़ में डिले है, बट दैट डिले इज़ नॉट, I mean it won't be that long. It will take you some time. You will have to go through the steps, 1 2 3 steps, but it's going to take time, and your manifestation is going to come true. द मैजिशियन हैज़ शोन अप. दैट मीन्स कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो होगी पूरी, बट उसमें अभी टाइम है. वो इतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होने वाली. इट्स गोइंग टू टेक यू टाइम. ओके, सो यू आर गोइंग टू हैव टू क्लाइंब द लैडर. That's it for the Libras. Let's move on to the Scorpio. Dear Scorpions, your first card for the month of July in your personal life is the Knight of Cups. It seems like you want to offer your cup of love to someone. आपके दिल में, आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं. आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद किसी के ऊपर आपका क्रश है बहुत टाइम से. तो यू आर confessing your feelings, you want to take a step ahead in the direction of that person, and you want to take things forward from there on. and you, शायद आप में से कुछ लोग पर्सन को डेट के लिए भी पूछ सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूछ सकते हैं. मतलब यू आर गोइंग टू बेसिकली एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. Yeah, first week of July or the beginning of July. Your month, the card that shows up for you is the Ace of Swords. So you are trying to have a new beginning with somebody. आप किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ इन योर, मोस्टली ऐसे दिस एज अ लव रीडिंग. ओके, तो आप किसी के साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, एक न्यू रिलेशनशिप.
ज़्यादातर लोगों के लिए एक न्यू लव रिलेशनशिप दिख रहा है. फॉर अ वेरी फ्यू पीपल दिस कुड बी दैट यू आर ट्राइंग टू improve things at your home front and improve how your relationships go on in your personal life in general. Like, now this could be also in terms of your relationship with your friends, family, or this can also be in terms of your love relation. Okay, so that's what's happening here. Ace of Swords, new beginning. You are trying to establish a ground. You're trying to do the groundwork for a new beginning. You're trying to establish the a sacred space where you can plant the roots for this new beginning. Okay, so that's what's happening in the mid of the July. By the end of the July, that card that shows up for you is the Five of Cups. Even though you're doing a new beginning, you somewhere seem to be stuck a little in the past. कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कुछ लोग जो सिचुएशंस आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कुछ रिलेशनशिप्स जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आप कहीं ना कहीं उनको मुड़ के वापस देख रहे हैं कि what went wrong, why did it not worked out. You are reminiscing the past basically, that is the energy. You are not focusing on the things you have built here. The cups that are still standing, you're not focusing on the things that you have built. आपका फोकस कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी पे जा रहा है कि पास्ट में आपने कुछ लोगों के साथ शायद कुछ बिल्ड करने की कोशिश की, कुछ लोगों के साथ रिलेशन, फ्रेंडशिप, anything. You tried to build it, but it did not work out for you. It did not happen for you. So you are somewhere reminiscing those things. You are reminiscing some people, some situations जो कि workout नहीं हुई. Bottom of the deck is the Lover's card. As I said, this is a love reading mostly, I see. So what's happening behind the scenes? You are being prepared for a very mutual give and take love relationship, which is going to make you fulfilled uh, very much. But that relationship is going to make you feel very fulfilled on an emotional level. You're going to be very happy. This is going to go on for a while, whatever it is that you're starting now. And it's going to be a very happy, fulfilling relationship for both of the people in the relationship, and you're going to become a very giving person also. You're going to develop a lot as a person here, I see. Okay, so that's it for your personal life. Let's move on to the work situation. The first card that has shown up for you is the Sun card. तो आप अपने वर्क सिचुएशन में शाइन करेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको फेम मिल सकता है, नेम मिल सकता है. यू गोइंग टू प्रोग्रेस अ लॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द जुलाई. ओके, किसी तरीके की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके पास इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू shine, outshine other people, and shine at your work front. People are going to notice you, people are going to look at you, people are going to observe you in general. आप लोगों की नज़रों में आने वाले, ठीक है. That is what is going to happen, and you're going to be very happy also about this. Whatever this opportunity is going to come in, that is going to make you very happy. Okay, so mid of the month, the card that shows up for you is the Seven of Wands. किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके शोल्डर्स पे आई है विद दिस न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी ऐसी. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा तो रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको उसका वेट, प्रेशर लग रहा है. नॉट टू मच बट लिटिल, एंड दैट प्रेशर इज गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ इरिटेशन वाला सेंस. तो यू आर ट्राइंग टू वर्क थ्रू इट. आई सी यू ट्राइंग टू वर्क थ्रू इट, बट दैट इज वट यू आर गोइंग टू फील. ओके, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके साथ कुछ प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, जो आप कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकता है टू सम एक्सटेंट. So the last card that shows up for you is Ten of Pentacles in your work situation. Very grounding card, very stable. It shows कि आप कोई चीज़ को काफ़ी टाइम से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे अपने वर्क में. आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड नाउ यू आर रेडी टू बेयर द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. आपको
फाइनेंशियल बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, और आपको नेम फेम स्टेबिलिटी सब कुछ मिलने वाला है बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई. What is going to happen in August, we are going to see that, but for the month of July, that is what is happening. Bottom of the deck is the Queen of Swords. So I see you becoming very authentic over here. अभी तक शायद कहीं ना कहीं आप अपने ओपिनियंस को या जो आप कहना चाहते थे अपने वर्क फ्रंट पे, अपने वर्क सिचुएशन में, वो पूरे तरीके से नहीं बोल पाते थे. कहीं ना कहीं चीज़ें आप अपने अंदर ही रख लेते थे. बट दैट इज़ गोइंग टू चेंज, एंड you're going to come into this energy of a very authentic person. आप जैसे हैं आप खुद को वैसा ही दिखाएंगे. आप चीज़ों को शुगर कोट नहीं करेंगे. जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे ही बोलने वाले हैं. काफ़ी हद तक आपका वोकल कॉर्ड एक्टिवेट होने वाला है. फॉर वोकल कॉर्ड से मेरा मतलब है योर थ्रोट चक्र, इफ़ यू बिलीव इन दोज थिंग्स. इफ़ नॉट देन vocal cord. You are going to be very vocal, and you're going to say things as they are, no sugarcoating. You are basically, this month is helping you into becoming a very authentic, original person, the way you are. Okay, not somebody else, but you are becoming more like yourself, and you are becoming more and more authentic day by day. So that is what is happening for you. So dear Sagittarius, your first card for the month of July in your personal life is the Six of Pentacles. You are in this energy of giving to a lot of people. You want to help your people. आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपके पार्टनर को हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट. यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक एक्शन इन टू दैट डायरेक्शन for the first matlab beginning part of July. That is what you're going to do. You're going to uh, maybe spoil your loved ones. Maybe you can take them out for a shopping spree or something like that. उस तरीके का कुछ करने वाले हैं आप. और आप अपने लोगों को काफ़ी बेनिफिट देना चाहते हैं और देंगे भी. You are going to either take somebody out for shopping, for lunch, for dinner. घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं. अगर आपके कोई लव्ड वंस या क्लोज लोग हैं जिनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी करेंगे. तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. ओके, मिड ऑफ द मंथ द कार्ड दैट शोज अप फॉर यू इज़ फोर ऑफ पेंटिकल्स. तो इट सीम्स लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू योर क्लोज पीपल, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको पता है आपके लिए सेफ सिक्योर लोग हैं, जो आपका जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पे आपके साथ खड़े रहेंगे. यू आर चूजिंग दोज पीपल एंड यू आर स्टिकिंग क्लोज टू दोज पीपल, और आप उन लोगों से ही अपने आप को सराउंड कर रहे हैं. और you are focusing more on your stability mid of the month. Okay, you're not doing any experiment in your personal life कि आप किसी नए लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं या उठना बैठना आपके नए लोगों के साथ हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. आप जो आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, लव्ड वंस, जिन लोगों पे आपको भरोसा है, जो लोगों को आप अपना मानते हैं, आप उनके साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं और उनको अपने क्लोज रखेंगे. ठीक है. By the end of the month, the card that shows up for you is Seven of Wands. तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस टाइम पे जुलाई एंड में जाके आपको अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. कि हो सकता है कि आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए. मे बी एट योर वर्क फ्रंट ऑल्सो यू मे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एट होम ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि आपके कंधों पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, जिस वजह से यू में बिकम अ लिटिल बिट इरिटेटेड, एंड आप कहीं ना कहीं लोगों को शायद जवाब नहीं दे पाए, ना नहीं बोल पाएंगे. तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ जुलाई. ओके, तो या आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैलेंस करने की कोशिश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सफ़र करेंगे बाय द एंड ऑफ जुलाई. बट ओवरऑल आई सी अ वेरी गुड thing happening for you. Bottom of the deck is the Two of Cups. So you are investing in relationships and family dynamics, जहाँ आप लोगों के लिए कर रहे हैं. अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो लोग भी आपके लिए
सपोर्ट में रहे हैं, या फिर वो लोग भी आपके साथ आपके टफ टाइम्स में आपके साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ हैं। तो आप, it's equal give and take relationship that is behind the scenes is building for you with your loved ones, be it your partner, your friends, your colleague, your friends, your family members, okay, your friends, family members and your partner. इस टाइम पे your relationship is getting into deeper level and it's becoming more of equal give and take, okay. So that's all I have for you at the personal front. Your work life says the first card is the Ten of Pentacles. तो काम आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मुझे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। प्रोग्रेस है, मॉनेटरी गेन्स भी आ रहे हैं, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और यू सीम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड विद द वे थिंग्स हैव वर्कड आउट फॉर यू। आपके काम में चीज़ें जैसी हुई हैं, जैसी चली हैं, वो चीज़ों से आप काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। यू सीम वेरी हैप्पी, ओके। एंड ओवरऑल आप काफ़ी कंटेंटेड हैं, लाइक द वे यू थॉट, या जिस तरीके से आप चाहते थे कि चीज़ें वैसी होनी चाहिए, या आपका बिजनेस या आपकी जॉब में कुछ प्रोजेक्ट्स आप जिस तरीके से चाहते थे कि वो वैसे प्ले आउट हो, चीज़ें वैसी ही एग्जैक्टली प्ले आउट हुई हैं और आप काफ़ी सेटिस्फाइड है उस चीज़ से। मिड ऑफ द मंथ द कार्ड दैट शोज अप फॉर यू इज़ द टेम्परेंस, बट इट्स इन रिवर्स। तो अगर आप कुछ और न्यू चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू बिजनेस एंडेवर है आपके माइंड में, तो उस चीज़ में भी डिले है। आपको उस चीज़ में पेशेंस रखना पड़ेगा काफ़ी। अगर इफ द कार्ड टेम्परेंस कार्ड वॉज नॉट रिवर्स, इट वॉज स्ट्रेट, तो थोड़ा डिले होता, बट इट्स इन रिवर्स, तो इट्स इंडिकेटिंग क्वाइट सम टाइम डिले। तो कोई अगर आप चीज़ को, प्रोजेक्ट को पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट को या न्यू बिजनेस एंडेवर को, तो उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल बी अराउंड 2 to 3 months जब आपका ये प्रोजेक्ट कुछ फर्दर प्रोग्रेस कर पाएगा, बट टिल देन इट इज़ गोइंग टू बी डिलेड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी, द लास्ट कार्ड दैट शोज अप फॉर यू इज़ द 5 of Cups इन द जुलाई मंथ आपके वर्क फ्रंट पे। तो आप कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हैं, कुछ मिस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं जो आपको लगता है कि आप कर सकते थे, बट अब कहीं ना कहीं आपने मिस आउट कर दिया है। तो जुलाई एंड में थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड वाला एनर्जी है, जहां आप अपनी प्रोग्रेस को या जो चीज़ें आपने अचीव की उन चीज़ों पे फोकस ना करके आप पास्ट की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ और मिस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक फॉर द वर्क फ्रंट इज़ द कीपर ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके अंदर सप्रेस्ड हिडन एंगर है, अथॉरिटी है, यू आर प्लेइंग आउट, योर प्लेइंग योर अथॉरिटी पार्ट एट योर वर्क फ्रंट वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी पार्ट में आपके अंदर हिडन एंगर भी है जो आपने सप्रेस किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ हेल्थ इशूज ड्यू टू द सप्रेस्ड एंगर। तो वर्क ऑन दैट्स अबाउट इट, बट it's also indicating that you are behind the scenes. What is happening is you are becoming a more powerful person in your करियर फ्रंट। आप अभी जो चीज़ें आपकी हो रही हैं, जो भी चीज़ें सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, जिस तरीके के लोगों से आप डील अप कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू लीड यू अप टू बिकमिंग अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल पर्सन इन द फ्यूचर, ओके। So Capricorns, your first card for the month of July is the Fool card in your personal life. आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन के ऊपर, और यू वांट टू ट्राई थिंग्स आउट, यू वांट टू सी हाउ दिस थिंग गोज। उस एनर्जी के साथ आप उस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं या उस रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हैं। You are very excited, you are very happy, you are very optimistic about this new beginning of yours. आप किसी मोस्टली आई सी न्यू रिलेशनशिप बिगिनिंग, फॉर अदर्स आई सी कि आप अपनी फैमिली डायनामिक्स में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट बाईगॉन्स को लेट गो करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू फोकस ऑन मोर पॉजिटिव आउटकम। यू वांट टू make your personal life more positive and you are putting in efforts in that direction.
और आप काफ़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हैं इस न्यू बिगिनिंग को लेके, एंड यू नो देयर आर some risks involved, but anyways you're going ahead and doing it, and yeah, you're very excited. Mostly I see you being very excited about it. Mid of the month, the card that shows up for you is Queen of Cups. So you're full of emotions. आपके इमोशंस लेफ्ट राइट सब जगह से आपके इमोशंस जो कहीं ना कहीं सप्रेस किए हुए थे आपने, वो बाहर आ रहे हैं स्लोली स्लोली, एंड यू आर फीलिंग ऑल ऑफ दोज इमोशंस विच यू प्रीवियसली मे बी हैव सप्रेस्ड इन योर सेल्फ फॉर सम टाइम. ओके, तो यू विल बी फीलिंग वेरी इमोशनल, very sensitive, but also very caring, very loving. You will become that person mid of the July mein, and you will be that way with your friends, family members, and if you have a partner in your life, or if you are about to get into a new relationship, then with that person you're going to be very loving, very caring, and very emotionally invested person. Okay, by the end of the month, the card that shows up for you is the Ten of Pentacles. So सब कुछ बढ़िया है. What I see here is everything being very happy for you, very stable for you. आप जो चीज़ें जैसी चाहते थे आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप वाइज, कोई एक गोल था आपका किसी एक सेक्टर में, फ्रेंड्स, फैमिली और लव, तो वो गोल आपका कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और उस वजह से आप काफ़ी फुलफिल, काफ़ी हैप्पी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं. ओके, एंड यू फीलिंग वेरी वेरी स्टेबल. मतलब जो चीज़ आपको जैसी चाहिए थी, चीज़ आपको वैसी मिल गई है. नाउ दिस कैन बी ईदर इन द सेक्टर ऑफ योर लव लाइफ, योर फैमिली डायनामिक, और इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप लाइफ. बट ओवरऑल ऐसी ओवरऑल चीज़ें वैसी ही होंगी इन योर पर्सनल लाइफ, बट देयर विल बी वन स्पेसिफिक सेक्टर जो कि स्टैंड आउट करेगा. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक इज द नाइट ऑफ कप्स. सो यू आर बिकमिंग दिस नाइट. व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स इज कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर सोल बन रहे हैं. यू आर बिकमिंग अ मोर इमोशनली मैच्योर पर्सन, एंड उस इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ग्राउंडिंगनेस भी आ रही है, एक मैच्योरिटी आ रही है ऑफ कमिंग टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू हैंडल योर ओन इमोशंस, एंड हाउ टू हैंडल relationships where there are अदर पीपल ऑल्सो इमोशनली इन्वेस्टेड. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत हेवी लेवल की इमोशनल मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है बिहाइंड द सीन्स. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड यू आर बिकमिंग दैट पर्सन स्लोली डे बाय डे. ओके, इन योर पर्सनल लाइफ. So for the work front, the first card that shows up for you is the Queen of Swords. You're coming into your energy, authentic energy. You're speaking truth, left, right, cut the truth. अब चाहे वो सच किसी को पसंद आए या ना आए, आप सीधा अपनी बात को कहने वाले हैं. यू आर गोइंग टू बी वेरी ब्लंट, एंड पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू नोटिस यू. और लोग आपके अंदर का ये चेंज देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपके अंदर ये जो सडन शिफ्ट आया है, लोग इस चीज़ को नोटिस करने वाले हैं. यू आर नॉट गोइंग टू शुगर कोट थिंग्स. आप चीज़ों को जैसा है, जो जैसा है वैसा बोलने वाले हैं, और you are going to become a very powerful person beginning of the July. Your speech is going to carry a very strong power beginning of the July. Okay, so yeah, that is what I see for the first part of July. Mid of the month of July, 7 of Pentacles has shown up. तो आप अपने काम को बिल्ड कर रहे हैं स्लोली स्टेडीली, और आप उस चीज़ में खुश भी हैं. आप जो भी काम कर रहे हैं, बी इट जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उस काम में खुश हैं, और आप स्लोली स्टेडीली अपने काम को स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन मिड ऑफ द जुलाई में, एंड यू बिकमिंग अ वेरी person with prestige in your workspace. Okay, लास्ट कार्ड दैट शोज अप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंडिंग के लिए, 2 of Swords. आप किसी तरीके की कश्मकश में है,
maybe you are weighing your options. You have two options, okay. uh, यू हैव टू ऑप्शन, और आप वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा. मे बी यू आर गेटिंग, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास कहीं और से जॉब ऑफर या वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई बेटर प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा हो सकता है. तो यू हैव टू फिगर आउट विच वन टू चूज़ और विच वन टू स्टिक टू. कि आपका प्रेजेंट जॉब बेटर है, या आपका जो नेक्स्ट जॉब जो आपको ऑफर हो रहा है वो बेटर है, वहाँ आपको बेटर पे आउट मिल रहा है, क्या है. देयर इज समथिंग अबाउट दैट एनर्जी. तो आप कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, जो कि आपको एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में डालेंगे, और आपको चूज़ करना पड़ेगा विच वन ऑफ दोज प्लेसेस. ओके, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, द हैंड वुमन. So you're learning to wait. You're learning to become a very patient person. You're learning to flow with life. Earlier maybe you were one of those people जो कि चीज़ों को रश करने की कोशिश करते थे, या चीज़ों को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करते थे. But now you're learning patience. You're learning how to go along with the flow of life and let things unfold slowly in your workspace. So yeah, that's it for the Capricorns. So dear Aquarians, your first card for the month of July is the Two of Cups in your personal life. So there seems to be some sort of love connection coming towards you. For most of the Aquarians, I see किसी तरीके का लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है. मोस्टली I see somebody coming towards you who wants to offer you equal give and take in terms of a relationship, and this bond is going to be very fulfilling for you. For most of the Aquarians, I see a love relationship coming in. Very few Aquarians I see ki your relationship with your family dynamics, your friends, and if you have a partner in your life, that is going to improve it. The स्केल्स जहाँ कहीं ना कहीं अनबैलेंस थे, जहाँ आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे लोगों को, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई दिख रही हैं अब. तो द पीपल दैट यू वर पुटिंग इन योर एफर्ट्स फॉर, be it a love relation, friendships, or your family dynamics, that is going to be uh, given back to you now. Now it will be an equal give and take relationship in terms of your personal life. Everywhere I see, mostly I see everywhere. और बट कुछ लोगों के लिए कोई लव रिलेशन है जो उनकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ जुलाई. Somebody is going to come forward, somebody is going to propose or take you out on a date, and that person is going to be equally invested in this relationship as much as you are. Okay, mid of the month, the card that shows up for you is the King of Wands. You're coming into your power here in your personal life. आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए दिख रहे हैं. You're becoming more practical. You're become, due to your previous experiences, you now seem more practical. आप पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को काफ़ी एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हैं ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं. यू आर बिकमिंग एन अथॉरिटेटिव पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन who has a lot of experience, but also the understanding of others and how relationship dynamics work in real life. Okay, so you're becoming a very prosperous person overall. I see a very strong and prosperous person in your personal life. So the last card that shows up in the month of July is the Chariot card. It's a major arcana. तो ये दिखा रहा है कि आप first think that you are going to travel somewhere. This can be uh, this can be a leisure travel. आप अपने खुद के लिए ट्रैवल कर सकते हैं फॉर फन, फॉर रिलैक्सेशन टाइम. आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई. ओके, एंड what's happening behind the scenes is the bottom of deck card, Four of Pentacles. What's happening behind the scenes is you are building a very stable life for yourself. In terms of your personal life, आप अपनी लाइफ को काफ़ी स्टेबल बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे.
and that is what is happening behind the scenes for you. Yeah, that's about it. By the end of July, you're going to travel somewhere, and that travel is going to be leisure travel, travel for self relaxation, taking time out for yourself. Okay. So the first card for the month of July that shows up in your work life is the Wheel of Fortune. That's a good card. अगर अभी तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी, जो कि एज फार एज आई नो, एज पर द ट्रांजिट्स एंड एवरीथिंग, for most of the Aquarians, things were not going their way, being an Aquarius myself. So things are going to shift now. They are going to take a positive turn, and things are going to start to work out in your favor, and but it's going to be slow. So that's what's happening, and मेजरली दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग. अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपके काम में नहीं चल रही थी, या आपका वर्क प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें अब शिफ्ट होती दिख रही हैं. ओके. मिड ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई वर्क सेक्टर ऑफ एक्सपीरियंसेस द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. किसी टाइप का बैक स्टैबिंग होता हुआ दिख रहा है आपके साथ एट योर वर्क फ्रंट. कोई पर्सन, कोई इंसान है जो कि जिस पे शायद आपने ट्रस्ट किया था इन योर वर्क स्पेस, बट सडनली दैट पर्सन शोज देयर ट्रू कलर्स, एंड आपको उनके बारे में कुछ चीज़ ऐसी पता लगेगी जिससे आपको यू विल बी हार्ट ब्रोकन. ओके. but you are going to overcome that as well, but ultimately you are going to discover somebody being somebody backstabbing you at your work front. जो इंसान आपके लिए आपके फेस पे काफ़ी अच्छा था, बट पीठ पीछे आपके काम पे उसने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, और इनफैक्ट दे that person backstabbed you somewhere, they broke your trust. That is what you are going to discover mid of the July. End of the July, the card that shows up for you is Eight of Pentacles. So it seems you're working very hard. आप अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट उसका रिजल्ट जो है वो आपको इमिडिएटली नहीं मिल रहा. दैट रिजल्ट इज़ डिलेड. मोस्टली आई सी दैट रिजल्ट बीइंग डिलेड. सो mostly I see a ground reality check for you in your work front. चीज़ें आपको जितनी स्टेबल और अच्छी दिख रही थी उतनी होंगी नहीं, तो वो चीज़ आपको डिस्कवर करने को मिलेगी. और अब जो मेहनत कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा आपके पास. एट ऑफ पेंटिकल्स इज शोज दैट योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ, बिकॉज इट इज़ अगेन द नंबर ऑफ सैटर्न, एंड पेंटिकल्स इज़ द एनर्जी ऑफ मनी स्टेबिलिटी. तो कहीं ना कहीं आप जो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बट इट्स अ बिट डिलेड. तो यू हैव टू जस्ट योर karma. You have to do your thing, you have to put in your efforts, and you're going to get the fruits of your labor in some time. Okay. Bottom of the deck, what's happening behind the scenes for you at your work front is the Four of Swords. You're building something slowly and steadily, and ये चीज़ कुछ टाइम के लिए तो जाने वाली है. अबाउट 6 to 10 months I see, mostly 10 months almost. This thing is going to last for 10 months. Whatever it is that you're working on, अपने काम में, अपने करियर में, जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, ये फेज़, ये साइकिल थोड़ा ऐसा ही जाने वाला है, एटलीस्ट फॉर 10 months. And it's going to be a journey for you, mostly I see, and you're going to build something that will be carried forward with you, that you will carry forward with you into your upcoming career journey. ठीक है. अगर जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो चीज़ में आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, दैट थिंग इज़ गोइंग टू पे ऑफ, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, एंड यू आर गोइंग टू हैव टू डू योर वर्क एटलीस्ट फॉर 6 to 10 months का टाइम. आई सी यू आर गोइंग टू हैव टू कंटिन्यू to put in the efforts, and you're going to see the results slowly, steadily, but you're going to see the results. So yeah, that's it for the Aquarians. Pisceans, your first card for the month of July in your personal life is the High Priestess. तो
It seems like you're being blessed by the universe, by the God. Some sort of higher power is protecting you. ठीक है? And but you also need to pay your due diligence in this, where the this is a guided message where you have to uh, pray to some deity जिसको भी आप मानते हैं, or you have to in general pray to God. Be thankful to the universe for everything that you have. Be grateful, show your gratitude. You have to do those things. You're being protected, you're being divinely guided, but you have to do your due diligence. You have to do some sort of puja sadhana, gratitude practice, जो भी आपको ठीक लगे इस फॉर्म में आपको कुछ करना है जिससे कि आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखा सकें अपना, ठीक है, जो आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उस चीज़ के लिए. मिड ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, द कार्ड दैट शोज अप फॉर यू इज़ द सन कार्ड. तो यू विल बी वेरी हैप्पी हेयर. You will be in this very happy energy, very positive. आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेंगी, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे. ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी जाएंगी. आपको रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हर चीज़ जो भी आप करने वाले हैं उस हर चीज़ में आपको खुशी मिलेगी. You are going to be very in this energy of happiness, and a lot of sun energy is also going to be in there for you. So you are going to attract a lot of people. आप कहीं ना कहीं लोगों को आउटशाइन करेंगे, अपने आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं आउटशाइन कर देंगे, और लोग आपको नोटिस करेंगे. लोगों का फोकस आप पे ज़्यादा आएगा, ठीक है. By the end of the month, the card that shows up for you is the Five of Cups. So beginning of the month is very good for you. By the end of the month, आप कहीं ना कहीं पास्ट को रेमिनिस कर रहे हैं, कुछ पास्ट के लोगों को मिस कर रहे हैं जिनके साथ आप कहीं हैंग आउट करते थे या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था. जो आप पास्ट की मेमोरीज को काफ़ी मिस कर रहे हैं, पास्ट के लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं जिनके साथ आपने एक काफ़ी अच्छा खासा टाइम बिताया था. So you're missing those people. You're missing those moments of yours. You're missing those memories. आप कहीं ना कहीं उन मेमोरीज में खोते हुए दिख रहे हैं by the end of July. So bottom of the deck, what's happening behind the scenes for you is the King of Wands. What's happening is you are learning to become a more prosperous, powerful person. और उस प्रोसेस में आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे. You are also going to look back at few things, but you're going to learn how to be present also. आप एक prosperous, powerful person बनने के रास्ते पे हैं. And I see that happening because Saturn is transiting right now in your first house, and it's teaching you a lot of lessons also. And ये लास्ट फेज है सैटर्न ट्रांजिट का, तो ये लास्ट का 1 year इज़ गोइंग टू शो द मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑफ इट. So it's going to make you a mature person, more mature. Okay. So you are becoming this powerful and prosperous person. You are on that journey. आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है in the upcoming times, and that is what you're working towards right now. So let's move on to the work front. The first card that shows up for you at your career is the Queen of Swords, but it's in reverse. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए. जिस भी सिचुएशन, वर्क, जॉब, बिजनेस डील, फ्रीलांसिंग, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आप खुद को सबके साथ एडजस्ट करने की और घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ बिट टफ फॉर यू. कहीं ना कहीं आप जिन लोगों से या जिस टाइप के लोगों से सराउंडेड हैं, आप उस तरीके के पर्सन नहीं हैं. आप एक थोड़े से डिफरेंट पर्सन है उन लोगों से, बट यू आर ट्राइंग टू जेल इन विद दोज पीपल. यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आप उन लोगों के साथ घुल मिल पाए, उन लोगों के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बन जाए. यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दैट. मिड ऑफ द मंथ,
यू आर डन ट्राइंग. बिगिनिंग ऑफ द जुलाई में आप ट्राई कर रहे हो और मिड ऑफ द मंथ तक आपने अपने हाथ खड़े कर दिया एंड यू आर बिकमिंग बैक into your authentic self and showing everybody that yes, I was being nice to you. मैं अभी तक तुम लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी. अब मैं अपने ओरिजिनल कार्ड में आ गई हूँ या आ गया हूँ. दिस इज़ मी. टेक इट और लीव इट. यू आर गोइंग टू बी इन द यू आर गोइंग टू be in that energy. Okay, by the end of the month the card that shows up for you is the Eight of Pentacles, but it's in slate. So you're building your money, you're building your work, and you're looking forward to also आप अपने आप को और कहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं. आप वो भी चीज़ें देख रहे हैं, आप वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि आपको अगर और अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे कि आप खुद को एक्सपैंड कर पाए, अपने वर्क को एक्सपैंड कर पाए. तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज थिंग्स, योर दोज अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. ओके, and you're working on building a very stable work life for you. Bottom of the deck is the Queen of Cups. So what's happening behind the scenes is this work, job, whatever it is that you're doing is fulfilling you. कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ायर था वो उस चीज़ को ये फुलफिल कर रहा है स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. नाउ योर डिज़ायर कैन बी जस्ट टू ओन लग्जरी, नथिंग एल्स. And the money you're making is slowly helping you buy those luxury things. Okay, so take it however it applies to you, but this work life is fulfilling you a lot. It's making you very happy inside out. अंदर से आपको खुशी दे रहा है ये काम, and you're going to be continue to be happy with for some time, I see. सो या दैट्स इट फॉर द पाइसीज. तो एज यू कैन सी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद आई एम ऑल ड्रेन्ड आउट अगेन. मेरी आंखों से ही दिख जाता है कहीं ना कहीं. तो आई होप अगर ये वीडियोस आपके साथ रेजोनेट होती हैं, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं. इफ़ यू डू लाइक दीज वीडियोस, थम्स अप दे दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दो. और अगर पिछले मंथ की वीडियोस आपके साथ रेजोनेट की हैं, लास्ट मंथ जून मंथ की जो मैंने वीडियोस डाली थी वो आपके साथ रेजोनेट की हैं, तो वहाँ पे कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर कर दो और लोगों के साथ उनको अगर रेजोनेट हो जाए तो यू नेवर नो.